Hello children, how are you? I hope you all are having fun with English and reading the new chapters and also reading some novels at home. Very good. Continue to practice English, okay? It's a very beautiful language to learn. Okay, now let's see what's the story of this chapter. The prologue says, with a peak elevation of 29,035 feet, that's almost 8,850 meters, the top of Mount Everest is the world's highest point above sea level. As the world's highest mountain, climbing to the top of Mount Everest has been a goal of many mountain climbers for many decades. Despite the extreme cold, hurricane force winds, and low oxygen levels, climbers seek to successfully climb Mount Everest every year. Since the first historic climb of Edmund Hillary and Tenzing Norgay in 1953, more than 2,000 people have successfully climbed Mount Everest. So बच्चों, क्या आपने Mount Everest के बारे में पढ़ा है, देखा है, सुना है? Yes, बहुत सारी मूवीज भी बनी है इस पे. So this prologue talks about Mount Everest, okay, which is the highest point in the world, okay, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उस माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने की कोशिश की है. सबसे पहले किसने क्लाइम किया था? एडमंड हिलरी ने और टेंजिंग नॉर्गे ने. कौन से साल? इन द ईयर 1953. उसके बाद करीबन 2000 लोगों ने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है, उसके पीक तक पहुंचे. You know, it is very difficult to climb it because the climate, it's extremely cold, okay? कभी भी हवाएं चलती है जोर से और वहाँ पे जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर जाते हैं आपका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है. So it's really a difficult task to climb the Mount Everest. But still there are people who have bravely done this impossible task, okay, and managed to climb Mount Everest. Okay, now let's warm up. What was your most memorable trip? Can we climb a mountain without any training? So बच्चों, आपकी कोई भी memorable trip के बारे में बताओ और एक चीज़ बताओ कि क्या आप कोई भी mountain बिना ट्रेनिंग के क्लाइंब कर सकते हो? हाँ, कर तो सकते हो, बट वो होते हैं छोटे छोटे हिल्स. जैसे आप ट्रैकिंग पे जाते हो तो कर सकते हो, बट अब जब आप बड़े से माउंटेन को क्लाइंब करते हो देन यू नीड अ प्रॉपर ट्रेनिंग. ओके, इट्स नॉट ईजी टू क्लाइंब अ माउंटेन विदाउट अ प्रॉपर ट्रेनिंग. Okay, now let's read this chapter. Okay, looks fun. The Himalayas are a wonderful range of mountains. The mountains are huge, steep, and snow white. If you see them, you will never forget their beauty. Sometimes we call the Himalayas the roof of the world because they are on the highest mountains on earth. For many years, Sherpa traders carried rice and salt through the mountain passes. But most people did not try to cross the Himalayas. Okay, for a long time, no one knew which was the highest mountain of all. In 1852, the Survey of India measured the height of the mountains. It found that Mount Everest was the highest mountain in the world. But it was only in 1952 that the Survey of India found the exact height of the mountain. Okay. बच्चों, आपने हिमालयाज का नाम तो सुना होगा. ओके, हिमालयाज आर द माउंटेन रेंज ऑफ आवर कंट्री. ओके, दे आर ह्यूज, बहुत बड़े हैं, स्टीप है और एकदम स्नो वाइट के जैसे है, फ्लफी फ्लफी वाइट वाइट. ओके, दे आर वेरी ब्यूटिफुल. इसकी वजह से हिमालयाज को कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड. ओके, जैसे वर्ल्ड की रूफ बनी है, ऊपर वाला हिस्सा. ओके, बिकॉज दे आर द हाइएस्ट माउंटेन्स ऑन द अर्थ. ओके, बहुत सालों तक शेरपा ट्रेडर्स जो होते हैं उन्होंने उन माउंटेन्स पासेस से राइस और सॉल्ट भी कैरी किया है. ओके, बट किसी को एक्चुअली पता नहीं था कि हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है. जब 1852 में सर्वे किया गया इंडिया का, तभी उनको पता चला कि माउंट एवरेस्ट इस दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है. ओके, और फिर 1952 में उनको उसकी एग्जैक्ट हाइट भी पता चली. एट द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट देयर आर 2 peaks. South Peak rises to 28,700 feet.
the Everest rises to 29,028 feet. ओके, माउंट एवरेस्ट के दो पीक्स है. जो साउथ वाली पीक है वो 28,700 फीट अबाउ द सी लेवल, मतलब जो हमारा जहाँ पे समुंदर होता है वहाँ से जब ऊपर देखते हैं तो 28,700 फीट पे है साउथ पीक, और द एवरेस्ट है 29,028 feet above the sea level. Okay, now many people tried to climb Mount Everest. They wanted to stand at the top of the world, but climbing such a high mountain is not easy. At the summit, the Earth's atmosphere is very thin. There is little air to breathe. There are very strong winds and it is extremely cold. So बच्चों, देखा आपने, सुना कि इसमें क्या बोला गया है कि बहुत सालों से लोग माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने की कोशिश करें, बट ये आसान नहीं है बिकॉज वो बहुत ऊंचा है. ऊपर जैसे जैसे हम अर्थ ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर रहता है, हवा होती है, वो पतली हो जाती है और उसकी वजह से हमें ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए हवा नहीं मिलती है. फिर वहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है. So, in 1953, two men joined an expedition to climb Mount Everest. They came from different countries and they spoke different languages, but they both wanted the same thing. They wanted to be the first people to climb the world's highest mountain. They both wanted to climb to the summit of Mount Everest. So, 1953 में दो आदमी आते हैं जिनको माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना होता है. उनका गोल होता है, एम होता है लाइफ का कि उनको फर्स्ट क्लाइंबर्स बनना है माउंट एवरेस्ट का. ओके, अब उन दोनों की लैंग्वेज भी अलग थी, भाषा अलग थी, बट उन्होंने क्या सोचा कि चलो इकट्ठा हम मिल के माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करेंगे. Okay, now let me see how much you've understood about Mount Everest by tracking your performance. When did Survey of India found the exact height of Mount Everest? And what are Sherpas famous for? So, जो एडमंड हिलरी थे, he came from New Zealand. अभी न्यूजीलैंड में वो हनी बीज रखते थे और हनी बेचने का काम करते थे, बट हमेशा से उन्हें माउंटेन क्लाइंबिंग का शौक रहा है और उन्हें बहुत पसंद था. Tenzing Norgay came from Nepal. His family were Sherpas who are well known for their skill at mountain climbing. Okay, when he was a young boy, Tenzing ran away from his home near Mount Everest and went to live in Darjeeling. But soon he came back and helped teams of climbers. तो जो टेंजिंग नॉर्गे थे वो नेपाल के थे. ओके, अब उनकी फैमिली जो थी वो शेरपास से बिलोंग करती थी जिनके पास वो माउंटेन क्लाइंबिंग का स्किल था. जब वो छोटे थे तो वो अपने घर से भाग के माउंट एवरेस्ट के पास रहने लगे, जहाँ पे वो दार्जिलिंग में रहने लगे, और उसके बाद उन्होंने जो क्लाइंबर्स की टीम थी उनको हेल्प करना शुरू कर दिया. तो इन 1953 okay, their team set out to climb Mount Everest. They wore very warm clothes and special boots which do not slip on the ice. They carried air containers on their backs to help them breathe. After a few days, the team reached a camp high on the mountain side, while the rest of the team stayed at the camp. Hillary and Norgay continued towards the summit. When they reached 27,900 feet, they put up a tent for the night. Okay? सो नॉर्गे की तो जैसे वो माउंटेन क्लाइंबर्स को ट्रेन करता था, उनको हेल्प करता था, तो उन्होंने एक टीम सेटअप की टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. अब उन्होंने वार्म क्लोथ्स लिए, गर्म, क्योंकि बहुत ठंड होती है, तो उन्होंने गर्म कपड़े लिए, एक स्पेशल बूट्स लिए जिसकी वजह से वो आइस पे स्लिप नहीं हो जाएंगे. उन्होंने एयर कंटेनर्स लिखा जैसे जिसमें ऑक्सीजन कंटेनर्स होते हैं जिसकी वजह से उनको सांस लेने में आसानी हो जाएगी. और फिर उन्होंने थोड़े दिनों के बाद वो क्लाइंबिंग करना शुरू कर दिया. ओके, और जैसे बाकी टीम तो कैंप में रुक गई, बट हिलरी और नॉर्गे उन्होंने कंटिन्यू किया अपना माउंटेन क्लाइंबिंग. एंड देन दे व्हेन दे रीच 27,900 फीट पे जब वो पहुंचे तब ही उन्होंने रात के लिए टेंट लगा दिए, बट उन्हें नींद नहीं आई. दे कुड नॉट स्लीप. द विंड हाउल्ड एंड पुल्ड एट देयर टेंट. इट वॉज बिटरली कोल्ड. But above all, they were excited. They lay awake and wondered whether they would be the first people to reach the summit of Mount Everest. Early the next morning, the two men climbed up towards the summit.
They passed South Peak and at last at 11:30 in the morning, they reached the peak of Mount Everest. They were overjoyed. They were the first people to stand on the top of the world. They stayed at the summit for 15 minutes, took photographs and ate mint cake. Then they climbed slowly and carefully back down to their tent. The two men became famous. They both wrote books about their adventure. Tenzing Norgay lived in Darjeeling where he trained people to climb mountains. Edmund Hillary went back to the Himalayas many times. तो वो वहाँ पे उन्होंने टेंट बना लिया और पर क्या हुआ, जो विंड थी उसकी काफ़ी आवाज़ आ रही थी, शोर हो रहा था, तो इसकी वजह से वो सो नहीं पा रहे थे, उनका टेंट भी हिल रहा था और उनको एक्साइटमेंट भी तो थी कि क्या हम माउंट एवरेस्ट के पीक तक पहुँचेंगे या नहीं। ओके तो नेक्स्ट डे वो जल्दी ही सुबह सुबह अपने आगे की जर्नी पे निकल पड़ते हैं और वो समिट क्लाइम कर लेते हैं और अराउंड 11:30 के आसपास दे रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। बहुत खुश हो जाते हैं बिकॉज वो पहले ऐसे दो लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया का मतलब इस माउंटेन का टॉप मोस्ट पीक पे चढ़ने का अचीवमेंट किया है। ओके तो वो समिट पे करीबन 15 मिनट्स तक रुकते हैं, वहाँ पे फ़ोटोज़ लेते हैं, मिंट केक खाते हैं और धीरे धीरे नीचे आके अपने टेंट में चले जाते हैं। अब वे दोनों बहुत फेमस हो जाते हैं। उन्होंने अपने जो एडवेंचर था, कैसे उन्होंने वो माउंटेन क्लाइम किया, माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया, उसके बारे में लिखा है, फिर बुक्स लिखे हैं, पब्लिश किए हैं। अब टेंजिंग नॉर्गे जो थे वो दार्जिलिंग में ही रहते हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है ऑन माउंटेन क्लाइंबिंग। एडमंड हिलरी जो थे वो बार बार हिमालयाज आते हैं, विजिट करते हैं एंड ट्राई टू क्लाइम द माउंटेन अगेन। सो टुडे विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड विद द हेल्प ऑफ शेरपा गाइड्स, क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट is not as difficult as it was in 1952. Each year, teams of climbers try to reach the summit. Thousands of people have tried to climb Mount Everest, but only a few hundred have been successful. Mount Everest is a very beautiful mountain, but it is also very dangerous. The weather can change quickly. Sometimes climbers get lost or slip on the ice and fall. Many climbers have died on the mountain. In the past, Mount Everest was a very clean place, but many mountaineers throw litter on the mountainside. Now, some parts of Mount Everest are dirty. Climbers often leave empty cans, pieces of tent and air containers lying on the ground. So बच्चों, जैसे उस टाइम पे उनके पास इतने मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, फिर भी इन दोनों ने माउंट एवरेस्ट का पीक क्लाइम किया। दे अचीव्ड विच वॉज इम्पॉसिबल टास्क। ओके बट अब बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स आए हैं, बहुत सारे गाइड्स हैं, ट्रेनर्स हैं, जिनकी वजह से माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना थोड़ा आसान हुआ है। इट्स नॉट वेरी ईजी बिकॉज ऑल्दो ये माउंटेन बहुत सुंदर है, पर एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस, क्योंकि वहाँ पे माउंटेन पे वेदर कभी भी अचानक से बदल सकता है, पर और बहुत से लोग स्लिप भी हो जाते हैं बर्फ़ पे। इसके लिए it's a very difficult task. But yes, some of them have been really successful. A few hundred of them have been successful to climb the mountain. Okay? अब क्या हो रहा है, बहुत से लोगों की वो एक ड्रीम हो गया है, एम्बिशन हो गया है दैट दे वांट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। इसके लिए बहुत से लोग वहाँ पे जाते हैं, बट इसकी वजह से क्या हो रहा है, भीड़ बढ़ने लगी है। वैसे वैसे लोग माउंटेनियर्स जो होते हैं उन्होंने वहाँ पे गंदगी फैलाना भी शुरू कर दिया। देव स्टार्टेड लिटरिंग थिंग्स ओवर देयर, एम्प्टी कैंस छोड़ जाते हैं, टेंट के पीसेस होते हैं, एयर कंटेनर्स वहाँ पे छोड़ जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा माउंट एवरेस्ट जो बहुत सुंदर है वो धीरे धीरे गंदा भी होने लगा है। सो चिल्ड्रन, व्हेन यू गो समवेयर, ओके, बी वेरी केयरफुल दैट यू डोंट लिटर दैट प्लेस। ओके, उस प्लेस की ब्यूटी कायम रखो। इसकी वजह से तो हमारी इंडिया की ब्यूटी है। दैट्स वाई पीपल ट्रैवल टू इंडिया टू सी द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। ओके, सो डोंट लिटर। जब आप बाहर भी जाओगे तो गंदगी मत फैलाओ। ओके, so nowadays there are rules for mountain climbers. They have to bring all empty cans, bottles and so on back with them.
Okay, some teams of climbers are trying to clean up the mountain. In 1995, one team collected 560 kilograms of litter and carried it down to the bottom of the mountain. These climbers wanted to show others that the world's highest mountain must be kept clean and free from litter. ओके तो अभी उस वजह से जब उन्होंने देखा कि माउंटेन गंदा हो रहा है, सब लोग लिटर छोड़ रहे हैं वहाँ पे, तब से रूल्स बने हैं कि जब भी वो वहाँ पे जाएंगे तो उनको अपने साथ जो एम्प्टी कैन्स है, जो बॉटल्स है, जो भी सामान है गंद, वो सब वापस लेके आना है, कुछ भी माउंटेन पे नहीं छोड़ना है। एक टीम भेजी गई थी 1995 में जिन्होंने ऑलमोस्ट 560 किलोग्राम लिटर गंदगी कैरी की, नीचे माउंटेन के नीचे लेके आए। तो देखा आपने कितना गंद फैला हुआ होगा। तो बच्चों, please do not litter. Keep everything neat and clean. Okay? After all, these mountains are so beautiful, so precious. They are one of a kind. So never spoil the beauty of them. वैसे ही जैसे आप कहीं पे भी घूमने जाओगे, कहीं पे भी निकलोगे, so please remember to not litter. जो भी कूड़ा कचरा है घर ले आओ और डस्टबिन में फेंको, या बाहर भी डस्टबिन ढूंढो और उसमें फेंको. Okay, children, now learn this chapter very well. Reread this chapter, learn the important words and do the difficult words also. Do practice them and don't forget to do the back exercises.